آج کے رن ڈاؤن میں 4 بڑی خبریں، لیکن غور کریں تو شاید کہانی ایک ہی ہے، نظام کی، عوام کی اور ریاست کی ذمہ داری کی۔ ایک طرف ملک میں نئے نظام اور نئے صوبوں کی بحث پھر سے تیز ہو گئی ہے۔ خود نظام کی کارکردگی پر سوال اٹھ رہے ہیں، کیا صوبوں کے نقشے بدلنے سے حالات بدل جائیں گے یا پھر پورا نظام ہی نئے سرے سے دیکھنا ہوگا؟ تو دوسری جانب پاکستان کا کسان سڑکوں پر آنے کو ہے تیار، وہ کسان جو ملک کو دیتا ہے خوراک لیکن خود مہنگی کھاد، مہنگی بجلی اور کم آمدن کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ 25 ستمبر سے ملک گیر احتجاج کی کال ہے، راولپنڈی میں بڑے دھرنے کا اعلان ہے۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم پہلو جس کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے، مشرق وسطیٰ جنگ کی مسلسل لپیٹ میں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں پاکستان جنگ میں فریق بننے کی بجائے امن کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ تہران، انقرہ، ریاض اور واشنگٹن اسلام آباد کے لیے سب سے اہم ہے۔ پاکستان شاید اس وقت خطے میں امن اور سلامتی کے لیے ایک اہم سفارتی پل بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور لاہور کے غازی آباد تھانے میں ایک ذہنی طور پر معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کا کیس، الزام ایک پولیس اہلکار پر لیکن سوال پورے سسٹم پر۔ تو نظام بدلنے کی بحث سے کسان کے احتجاج تک اور مشرق وسطیٰ سے پولیس کے نظام احتساب تک، آج کے رن ڈاؤن میں انہی تمام خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ رن ڈاؤن وچ شمائلہ نیاز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ پاکستان میں کیا بدل رہا ہے؟ نیا نظام بدل رہا ہے یا نئے صوبے بن رہے ہیں؟ لیکن کچھ تو بدل رہا ہے یا شاید بدلنے والا ہے، کیونکہ اس وقت صرف حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے نہیں ہے، پورا سسٹم ہی سوالات کی زد میں ہے۔ خود وزیر داخلہ محسن نقوی کہہ چکے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، فلاپ ہو گیا ہے، یہ سسٹم ہمیں ترقی نہیں دے سکتا۔ یعنی سوال اب صرف حکومت کا نہیں، سوال پورے نظام کا ہے۔ اگر سسٹم ہی ناکام ہے تو پھر حل کیا ہے؟ نئی حکومت، نیا نظام یا نئے صوبے؟ کیا پاکستان کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے؟ کیا نئے صوبے بن گئے تو عوام کے مسائل کیا حل ہو جائیں گے؟ یا پھر نام بدلیں گے، نقشہ بدلے گا لیکن حالات وہیں رہیں گے جوں کہ توں؟ اور بات صرف نظام کی تبدیلی کی نہیں، اس وقت سیاست میں کئی چنگاریاں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کی سماعت ہے، حکومت کو نوٹس ہے، تو دوسری جانب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کی باتیں تیز ہو رہی ہیں۔ کابینہ کمیٹی بنانے کی ہدایت ہو چکی ہے، یعنی بلدیاتی الیکشن کی تیاری یا پھر ایک اور سیاسی وعدہ؟ اصل سوال یہی ہے، کیا انتخابات واقعی ہوں گے یا پھر سیاست ایک بار پھر راستہ روک لے گی؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتے، یہ طاقت کی نچلی سطح پر منتقلی ہوتی ہے، یہ گلی کی سیاست ہے، محلے کی سیاست ہے، اور یہی سیاست کل کو بڑے سیاسی نتائج دیتی ہے۔ اسی دوران تحریک انصاف نے بھی اپنی بساط بچھا دی ہے، 27 ستمبر کی کال دے دی ہے۔ ایسے ہی وقت میں ایک اور طبقہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، کسان۔ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ناظرین، اسی صورتحال پر بات کریں گے ایک ایسے سیاستدان سے جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، جنہیں اقتدار کے ایوانوں کا بھی تجربہ ہے اور اپوزیشن کی سیاست کا بھی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور پہلا سوال، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس وقت بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ان گردش کرتی ہوئی خبروں میں ایک یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، یہ سسٹم نہیں چل سکتا اور اس سسٹم کے تحت ہم ترقی نہیں کر سکتے، یا اگر یہ کہا جائے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو کیا متفق ہوں گا، اس ملک کا بچہ بلکہ ہر وہ بچہ جو اسکول جانے سے قاصر ہے، ہر وہ باپ جو بچے کی فیس دینے سے قاصر ہے، اور ہر وہ موٹر سائیکل والا جو پیٹرول ڈلوانے سے قاصر ہے،
اور کیا کہوں، مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ ایک پرپیچول ہے. اور میرے سے اگر آپ پوچھیں تو پچھلے 54 سال سے اس ملک کا نظام جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے. لنگڑا نظام نہیں ہوتا جیسے. اس ملک کے وسائل ان پہ مکمل قبضہ جو ہے وہ حکمرانوں کا ہے یا ایلیٹ کا ہے. اس کے وسائل کے اوپر اس ملک کے عوام کا کوئی حق نہیں. اب اس قسم کا اگر آپ ایک ٹانگ پہ چلتا ہوا نظام چلائیں گے تو وہ کتنا عرصہ چل سکے گا. اور اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا محاورہ بن گیا ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اس نظام کا وہ کون سا ایریا ہے جو واقعی ڈیلیور کر پا رہا ہے، اور اس نظام کا وہ کون سا سسٹم ہے جو کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. مطلب ایک مثال اگر آپ لے لیں، مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں جمہوریت ہو اور اس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو. بالکل حتیٰ کہ میں تو یہ کوئی ایسا ملک بھی بتا دیں جس میں آمریت ہو اور اس میں بلدیاتی ادارے نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی شرکت سے نظام کا چلنا. تو یہاں تو عوام کہیں کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چائنا تک کے اندر. اچھا، ویسے درانی صاحب آپ جو ہیں وہ صبح بہاولپور کے لیے آپ اس کے بلکہ تحریک کے روح رواں بھی ہیں اور کافی متحرک رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت آ گئی ہے اس چیز کی کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے بننے سے یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، رات کو میں سردار یوسف صاحب تھے، طلحہ صاحب تھے، مطلب اور ڈیفرنٹ ہر پارٹی سے بہت سینئر لوگ اس میں موجود تھے. مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، میں گیا ہوا تھا وہاں. اور آپ کو پتہ ہے میں نے بہاولپور کی تحریک شروع کی تھی، جنوبی پنجاب کی شروع کی تھی، پھر اسی کے بعد ہزارہ کی بھی. میں اس تحریک میں یہاں کے دوستوں کے ساتھ رہا، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی. تو اب جب وہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک بات جو بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ہزارہ صوبہ بن جائے تو ہماری تو معیشت بدل جائے گی. اگر ہمارا ہزارہ صوبہ بن جائے تو ہمارا اختیار ہمارے قریب آ جائے گا. ہماری ایک ہی انڈسٹریل اسٹیٹ جتنا ریٹرن دیتی ہے اس سے پورے ہزارے کی غربت ختم ہو جائے گی. اور وہاں جتنے ڈیمز اور جتنی مطلب پاور جنریشنز کے وہ ہیں پروجیکٹس ہیں، اگر ان کی جو پاور جنریٹ کر رہے ہیں وہ وہاں کے عوام پہ لگ جائے تو ان کے عوام کا سب کچھ بدل جائے گا. یہاں تو یہ حال ہے کہ جتنی ہماری پاور جنریشن ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے آئی پی پیز رکھے ہوئے. مطلب جو لوکل پاور صوبے اور علاقے پروڈیوس کرتے ہیں وہ حکمرانوں کے ذاتی ملکیت جو پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں وہ ان کی نان فنکشننگ کی قیمت ادا کرتے ہیں. مطلب کوئی ایک ایسا جگہ ہو جہاں پہ انسان کہے کہ کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو بڑے بڑے صوبوں کا شوق ان حکمرانوں کو ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے قبضہ گروپ والوں کا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا قبضہ ہو اور اس قبضے میں سے 1 انچ بھی نہ نکلے کسی کے پاس. بالکل بالکل صحیح. اچھا، ویسے آپ کے پہلے 2 سوالوں سے وہ اتنی مایوس کن باتیں آپ کی طرف سے آئی ہیں ویسے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایسی ایک ڈاواڈول کشتی کی جانب ہے کہ کبھی دائیں مڑ جاتی ہے اور کسی بھی لمحے یہ بائیں ہو جاتی ہے، کبھی بھور میں آ کے پھنس جاتی ہے. تو پاکستان کی سیاست میں بھی بیک وقت جو ہے نا وہ کئی محاذ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال جو ہے نا وہ انہوں نے دے رکھی ہے، اور کسانوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی نہیں رکنے والے. ٹھیک ہے. اور دوسری جانب جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کی جو صحت کا معاملہ ہے، یہ سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیاسی کوئی بہت بڑا بحران آنے والا ہے؟ دیکھیں، اس وقت تک جتنے بھی ایشوز ہیں ان کی بنیاد تو ایک ہے. ٹھیک ہے، بنیاد یہ ہے کہ عام آدمی اب اس ظلم کے اندر بچنے کے لیے، چلنے کے لیے، رہنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کی وجہ سے اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور حکمران جو ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے لوی لگانی ہے، ہم نے سستا تیل لے کے مہنگا بیچنا ہے، ہم نے
सस्ती बिजली पैदा करके महंगी बेचनी है, हमने इस मुल्क की गंदम को चोरी करवा के गंदम इंपोर्ट करनी है आवाम के पैसों से, शुगर मिलों के, जो भी आप ये भाई कहानी अभी मैं दोबारा चला देता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तमाम इश्यूज हैं ये अवाम के अदम इत्मीनान से निकलते हुए इश्यूज हैं। ये अच्छा होगा अगर इनको आप एड्रेस करें, बिल्कुल और सही। इनको एड्रेस करने का मैंने तो बहुत सिंपल सा फार्मूला बताया है, और फिर पीटीआई का मसला भी हल होगा। मसला ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो अल्लाह के वास्ते, इस मुल्क के अवाम के वास्ते, अपने आप को वोट ना मिलने के वास्ते जो है वो अनइलेक्टेड होने की वजह से वो इस इक़्तिदार की कुर्सी से हट जाए, और यहाँ पर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हुए नए सूबे बनाए जाए, बल्दियाती इदारे बनाए जाए, और इस निजाम को प्रो पब्लिक बनाया जाए, और उसके सारे मॉडल पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम कोई अजूबा बात नहीं कर रहे कि जी हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के कुछ करो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो अव्वल तो आपने कभी लागू ही नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के जिस दिन बना था अगले दिन इमरजेंसी लगा के आपने उसको सस्पेंड कर दिया था। इसके साथ ही अगर आप इस आइन को और इस आइन के एरिया में बसने वाले आवाम को एम्पावर कर देते हैं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। और इनके रास्ते में दो खानदान हैं जिनकी पिछले 54 साल से इस मुल्क के अंदर जो है कब्जा चल रहा है। और अच्छा। बात मैं आपको मुख्तसरन बताऊं, जी जी, दुनिया जो है ना, आमरीत ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जमहूरियत ने उससे अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन हाइब्रिड ने कभी कोई रिजल्ट नहीं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि न तू जिम्मेदार थे न मैं जिम्मेदार। मतलब ये है कि ये हाइब्रिड निजाम जो हुक्मरान में बिठाता है वो आवाम को देता कुछ नहीं है, और हत्ता के इस्तेमाल किया जाता है मुल्क के इदारों को अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए। बाद में जमहूरियत के नाम में भोले बन के सब कुछ लूट भी लेते हैं, और उसके बाद ये है कि अवाम के सामने भी मासूम बन के खड़े हो जाते हैं, हम तो हाइब्रिड से। तो ये जो एक पेज और हाइब्रिडाइजेशन है, इससे निजात पाना जो है वो इस आमरीत आ जाए इस मुल्क में, जमहूरियत आ जाए इस मुल्क में, आइन की हुक्मरानी आ जाए इस मुल्क में। नहीं वैसे दुरानी साहब, वैसे आप क्या समझते? इक़्तिदार में आने वाले गैर मुंतखब हुक्मरान जो है वो इस मुल्क को वारा नहीं। अच्छा दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए या आमरीत होनी चाहिए या बीच की कोई चीज होनी चाहिए जो हालात बेहतर हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ जी हमारे मुल्क में अब तो मैं इतना, आपको पता है मैं एक प्रो डेमोक्रेसी बड़ा ही सॉलिड तरीके पे उसका कायल हूँ, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है और ये जो मरूसी आमरीत के कहानियां हैं, पार्टियां जो कि 54 साल से किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार में चली आ रही हैं, इनसे निजात का जो भी रास्ता होगा वो मुल्क की फलाह का रास्ता, मुल्क की फलाह का रास्ता होगा। अच्छा ये भी एक है कि ये जो मैंने सवाल करना चाहूँगी, बानिए पीटीआई की सेहत के मुतालिक जो है, उनकी सेहत से मुतालिक बहुत सारी खबरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं और काफ़ी सियासी जो माहौल है उसको गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके पास कोई अंदर की खबर है कि बानिए पीटीआई की सेहत जो है वो आजकल कैसी है? देखिए मेरे पास खबर तो खैर जैसे आपके पास है वैसे ही मेरे पास है। अच्छा। लेकिन मैं समझ कि ये सेहत का जो है इशू, ये इशू नहीं है, वो माशाल्लाह सेहतमंद है और वो इतनी ज्यादा विल पावर रखने वाले और इतने एक हेल्दी हैबिट्स रखने वाले हमारे भाई हैं कि मुझे उनकी सेहत के बारे में कोई शक नहीं है। अलबत्ता मुझे लगता है कि हुक्मरानों की सेहत जो है ना वो आवाम की तवज्जो ना हासिल करने की वजह से खराब हो रही है, तो वो बार बार उनकी सेहत की खराबी की तमन्ना करते हैं और उसकी खबरें भी उड़वाते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक रहना है और ठीक ठाक रहेंगे। इन्हें चाहिए कि अब ये अपनी सेहत की वजह से इक़्तिदार छोड़ें। और बिल्कुल सही, यानी हमारे मुल्क का निज़ाम भी जो है ना वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है और सवालात का जवाब दिया। नाज़रीन प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है लेकिन पाकिस्तानी किसान परेशान है। जिसके हाथ में हल है उसके हाथ में इख्तियार नहीं है। जिसके खेत से गंदम निकलती है वो गंदम की कीमत पर बेबस है। जिसके खेत में कपास उगती है वो खुद महंगी चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। खाद महंगी है, बिजली महंगी है, डीजल महंगा है, बीज महंगा है, अद्वियात महंगी हैं, लेकिन किसान की आमदन
जूं की तो वहीं की वहीं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आखिर क्यों एक ज़राई मुल्क में किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है और अब ये सवाल सड़कों पर आने को है तैयार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज होगा, रावलपिंडी में धरना होगा, मिलियन मार्च होगा और मुतालबा वन एंड ओनली पंजाब की वज़ीर आला इज़्ज़त मआब मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफा। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाच का कहना है कि मरियम नवाज मजीद अगर 2.5 साल तक इक़्तिदार में रही तो किसान का मजीद बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। आखिर ये किसान जो है वो इतना गुस्से में क्यों है, क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं, मसाइल की पूरी फहरिस्त है। किसान इत्तेहाद का इल्ज़ाम है कि किसानों को गन्ने की रकम नहीं दी जा रही, ऊपर से छापों का इल्ज़ाम है और फिर सवाल क्या रमज़ान शुगर मिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये इल्ज़ामात हैं और इनका जवाब हुकूमत को देना चाहिए। लेकिन किसान की शिकायत समझने के लिए एक मिसाल काफ़ी है। आप फसल उगाएं, पैसे लगाएं, महीनों सख्त मेहनत करें और वो जो मेहनत का फल है वो भी ना मिले। अपनी ही फसल की रकम के लिए आप बार बार दरवाज़ा खटखटाएं। ये कैसा निज़ाम है? अब गंदम को देखें, फसल तैयार थी लेकिन 35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद कर दी गई और गंदम ना खरीदने के फैसले से किसान को मुबैना तौर पर 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। खुद सोचें कि 2200 अरब, ये किसान की पूरी साल की मेहनत है, उसका कर्ज है, उसके बच्चों की फीस है, उसका अगला बीज है, उसकी अगली फसल है। और अगर फसल की कीमत ना मिले तो किसान क्या अगली फसल उगाएगा? फिर कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में किसान बड़ा खुशहाल है। 25 सितंबर मुल्कगीर एहतजाज होगा, रावलपिंडी में होगा धरना। किसान इत्तेहाद के मुताबिक चारों सूबों से लाखों किसान पहुंचेंगे, मिलियन मार्च होगा और एहतजाज वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे तक जारी रखने की धमकी दी गई है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कि इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाच साहब। खालिद साहब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि 25 सितंबर, वैसे तो सितंबर के महीने में बहुत सारी एहतजाज की कॉल्स दे रखी हैं बहुत सारी जमातों ने, लेकिन 25 सितंबर को लाखों किसान जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और मुतालबा ये किया जा रहा है कि इज़्ज़त मआब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफ़ा जो है वो मांगा जा रहा है। इससे कम पर बात चीज़ जो है ना वो हो नहीं सकती। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का कि हमारी आवाज़ जो मुश्किलात में घिरी हुई थी उसको बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इस टाइम आप यकीन करें कि पाकिस्तान का जो किसान है, ख़ासकर चारों सूबों का किसान, इस टाइम इतने माशी उसके बुरे हालात हैं कि अल्लाह गवाह है कि हम गरीब किसान अपनी बच्चियों की शादियां करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो हमने लोन लिए, कर्जे लिए, वो वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम 3 साल से सीएम पंजाब से एक ही अपील करते थे कि खुदारा आप किसानों पर तजर्बात ना करें, आप गंदम जैसे पहले गवर्नमेंट खरीदती आई है आप उसी तरह गंदम खरीदें, बाकी जो हमारी चीज़ें खाद है, सीड है, आप सीड पे काम करें। मेरे पड़ोस मुल्क में जो दुश्मन मुल्क है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहाँ 1 एकड़ पे कॉटन 70 मन है, 80 मन उसकी 1 एकड़ पे गंदम है और मेरी 10 मन 1 एकड़ पे कॉटन है, 20 मन से ज़्यादा मेरी गंदम की एवरेज नहीं है। और दूसरा, जो आज से 4 साल पहले मेरी फसल का रेट था, आज उससे 30 से 40% कम हो गया है। लेकिन जो मैं डीएपी खरीदने जाता हूँ तो 4 साल पहले जो 7,000 की थी आज मैं 8,000 में खरीद रहा हूँ। जो यूरिया मुझे 1200 की मिलती थी आज 5,000 में खरीद रहा हूँ। यूनिट जो मुझे 5 से 10 रुपए का मिलता था आज मैं 80 रुपए खरीद रहा हूँ। और इसी तरह डीजल हो गया, बाकी पेस्टिसाइड हो गई। आज पेस्टिसाइड वालों ने भावल नगर में एक पेस्टिसाइड दी, उन्होंने वो सारी की सारी जो थी नाकस थी, लेकिन हम कोई पूछने वाला नहीं, कोई वारस नहीं हमारा। तो गवर्नमेंट पंजाब और खासकर सीएम पंजाब की जो नाकस पॉलिसियां 3 साल रही, जो वो तजर्बात हमारे पे करती रही, अगर 2 साल उसने और तजर्बा कर लिया तो हम अपनी जमीनों पे खड़े हुए दरख्त बेच के, माल मवेशी बेच के बिजली का यूनिट बिल भर रहे हैं, फिर हम अपनी औलादें अब किसको हमारे पास बिल्कुल सही खालिद साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो किसानों का मजीद जो पट्टा है वो बिल्कुल ही बह जाएगा, ऐसा ही है ना?
अच्छा, वैसे वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो भी मेरे सामने आई थी, क्योंकि सारी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, खास करके पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ओके की रिपोर्ट मिलती है कि हम जो है वो 4 एकड़ दे रहे हैं, 4 एकड़ के साथ हम हर फी एकड़ जो है वो 50,000 रुपया भी दे रहे हैं, आप अपनी फसल लगाएं और कमाएं और खाएं और खुशहाल पाकिस्तान बनाएं। खैर, ये तो उनकी खबरें आ रही हैं। अलबत्ता आपने एक इल्ज़ाम लगाया है रमज़ान शुगर मिल के हवाले से, तो क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं कि किसानों की अदायगियों में किसी सियासी या हुकूमती असर रसूख का किरदार जो है वो वाज़ेह है? क्या आपको नजर आता है कुछ किसी का किरदार? देखें जी, ये हम शुगर मिल मालिकान ना कहें, इनको गवर्नमेंट शुगर मिल कहें, क्योंकि जो इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं, दोनों घर की 80 से 90% शुगर मिले हैं। और मैं आज हैरान हुआ कि आसिफ साहब तो लोगों से जबरदस्ती शुगर मिल लेता था, पंजाब के लोग ऐसा नहीं करते थे। लेकिन कल का वाकया है कि एक शुगर मालिकान के पीछे एक शख्स गया है जो गवर्नमेंट का खास सीएम का बहुत करीब, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने जबरदस्ती शुगर मिल लेने की कोशिश नहीं तो नाम लेना। वैसे जनाब आप लोगों ने तो क्या नाम लेते हैं, अब सीएम पंजाब का इस्तीफा मांग लिया, तो ऐसा कौन सा नाम है जो आप ले नहीं सकते? नाम लेना चाहिए आपको। हमारे डीजी साहब हैं, डीजी फूड, जो हमारे सफ्तर क्या नाम है उनके बेटे हैं हमारी मरियम बहन के, मैं नाम भूल गया उनका, तो वो उन्होंने और डीजी ने ये मीटिंग की कि हमें ये शुगर मिल चाहिए। उस शुगर मिल के मालिक का नाम है जवेद कियानी। अच्छा। और उसने चीफ को खत लिखा है कि मेरी शुगर मिल इनसे बचाएं। ये हाल है गवर्नमेंट का। शुगर मिलों में प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि जो गन्ना लेते हैं उसमें चीनी अलग निकालते हैं, उसमें अल्कोहल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो अलग निकलती है, शीरा अलग निकलता है, लकड़ी बनाने के लिए जो हमारी प्लाई होती है उसका अलग निकलता है, माचिस उससे बनती है। और आईपीपी जो इन्होंने अपनी शुगर मिलों में आईपीपी प्लांट लगाए हुए हैं आईपीपी वाले, तो उसमें जो मेरे गन्ने से निकले हुए चीजों से वो बिजली बनाते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि आपने महंगा डीजल लेके बिजली बनाई है। जिस शुगर मालकान की 1 शुगर मिलें थी, आज 3 शुगर मिलें हैं। और जुल्म देखें कि जनूबी पंजाब का कुछ एरिया डिक्लेयर किया था कि उस पे कॉटन काश्त होगी, गन्ने की फसल काश्त नहीं होगी, क्योंकि गन्ने की फसल काश्त से पानी ज्यादा होता है और गन्ने की फसल साल में 1 दफा होती है, और कॉटन और गंदम की 2 फसलें हमें मिल जाती हैं। लेकिन हमें इतना मजबूर कर दिया कि कॉटन में हमें लॉस हो रहा है, हम मजबूर आप गन्ना काश्त कर रहे हैं। जो शुगर मिलें 1 थी वो 3 हो गई, कोई 4 हो गई। तो इस तरह जुल्म है कि मेरा किसान की गंदम का रेट कोई नहीं है, आईएमएफ का प्रेशर है। और मैं अपनी गंदम को सीएम पंजाब साहबा ने डीरेगुलेट कर दिया कि गंदम हम ना खरीदेंगे, आप किसान जाने। 2 साल पहले मेरी 16 से 1800 की गंदम बिकी और उस साल मुझे 1800 से 2200 अरब पंजाब के किसान को नुकसान हुआ। हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस तरह नुकसान हुआ। गवर्नमेंट को बैठना चाहिए। असल में मैं खालिद साहब, मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे उन मुतालबात के ऊपर बात कर सकूं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि हुकाम बाला तक भी जाने चाहिए। ऐसे कौन से मुतालबात हैं जो आप समझते हैं, क्योंकि मुतादिद हुकूमतें आई हैं, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी, तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी और मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर भी किसान हमेशा सड़कों पर ही आता रहा है। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं, जो ऐसी क्या इस्लाहात हैं जो करने की ज़रूरत है ताकि किसान जो है वो खुशहाल हो? और इसी के साथ मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप आएँ, बैठें, बात करते हैं, हम आपको मुतालबात सुनते हैं, तो क्या आप सीएम साहिबा का जो इस्तीफ़ा है वो अपना उसका मुतालबा वापस ले लेंगे? हमारा उस इस्तीफे के अलावा कोई मुतालबा ही नहीं है। अच्छा। अगर 2-2.5 साल सीएम पंजाब साहबा और रह गई तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। 3 साल का तजर्बा हमने बर्दाश्त किया, हमने एहतजाज किए, रिक्वेस्टें की, अपीलें की कि खुदारा हमारे पर रहम करें। लेकिन अब देखें, हमारी 2 बहनें मशीर हैं, उनकी सलमा साहबा, वो चावलों की नस्ल बताती है, उज़मा साहबा कहती है कि गंदम से तो चीजें ही बहुत निकल आती हैं। तो जो मेरे मशीर हैं, मेरे मरियम साहबा के, या जो काशिफ करमानी साहब, या उनकी तो मेरे देखने में कोई औकात ही नहीं कि वो लफ्ज़ गलत निकल गया, मैं माफ़ी भी चाहता हूं उनसे, कि वो सीएम पंजाब के सामने बात कर लें। यहाँ तो वो जो किसान नून के एमएनए से आप पूछ लें, ऑफ द रिकॉर्ड आपके पास प्रोग्राम करने आता है, उससे पूछो किसान का क्या हाल है।
पीपी के लोगों से, जिस शख्स से आप पूछेंगे, आपके इर्द गिर्द अगर कोई सफ किसानों के बेटे हैं तो उनसे पूछें, कहते हैं जी हमने कार्ड दे दिया। और भाई कार्ड किस तरह दिया आपने? मुझे 2 लाख रुपए लोन दिया कि आपने 4 महीने बाद लोन जो है ना वापस करना है। तो मेरी बहन, आप प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आपका मालिक आपको अगले महीने किराया ना दे और इस महीने 2 लाख लोन दे दे, तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप लोन दे सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह मेरी रहे हैं। मतलब फसल मतलब है कि आपके बहुत सारे मुतालबात हैं कि एटलीस्ट किसान जो है वो खुशहाल होना चाहिए, उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि जो किसान का मुद्दा हल हो सके। और बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। यानी हमारे मुल्क का किसान ये कह रहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रोग्राम के अंदर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद, तेहरान, आंकरा और रियाज, इन 4 दारुल हुकूमत पर दुनिया भर की नजरें जमी हैं और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान का किरदार सबसे ज्यादा दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी हैं, तुर्की से भी हैं और सऊदी अरब से भी हैं। यानी पाकिस्तान के पास वो सफारती रास्ते हैं जो बहुत कम ममालिक के पास हैं। इसीलिए ईरान की आला क़यादत अब पाकिस्तान की खुलकर तारीफ कर रही है। ईरानी आला सिक्योरिटी अहदेदार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने पाकिस्तान के बढ़ते हुए इलाकाई किरदार को सराहा है और एक इंतहाई अहम बात कह दी है। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम आलमे इस्लाम का कीमती सरमाया है। ये अल्फाज मामूली नहीं हैं, खास तौर पर इस वक्त में जब खित्ता कशीदगी से गुजर रहा हो। ईरानी क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ की है। यानी तेहरान में पाकिस्तान को सिर्फ एक हमसाया मुल्क नहीं समझा जा रहा, बल्कि एक अहम शराकतदार के तौर पर देखा जा रहा है। और वजह भी यही है, पाकिस्तान ने जंग में कूदने की बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार किया है। अब जरा दूसरी तरफ देखें तो तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, तीनों ममालिक ने एक दूसरे के दिफा को अहमियत दी है। और अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि यह मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा। वो चाहते हैं कि मजीद ममालिक शामिल हों। इस मुआहिदे के लिए हमारा विजन सिर्फ और सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि हम तो उम्मीद करते हैं कि ये मुआहिदा मजीद वसअत इख्तियार करे और शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा होंगे कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायरा कार में यकजा हो जाए। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान इससे कबल कह चुके हैं कि हमें तवक्को है कि अगले मरहले में मिस्र भी इस मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। उनके मुताबिक मिस्र की शमूलियत में सिर्फ चंद तकनीकी अमूर रकावट बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि मिस्र ने ताहाल इस मुआहिदे या हाकान फ़ेदान के बयान पर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। हाकान फ़ेदान जल्द ही काहिरा का दौरा करने वाले हैं। ग्लोबल फायर पावर के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका फौजी ताकत जो है वो बहुत नुमाया है और तकरीबन 14 लाख फाल फौजी एहलकार और इसके अलावा 3415 फौजी तैयारे, 6046 टैंक और 344 बहरी असासे। लेकिन इस ताकत में पाकिस्तान का किरदार बहुत खास है। तकरीबन 6,60,000 फाल फौजी एहलकार, जदीद दफाई सलाहियत और सबसे अहम जौहरी ताकत। यही वजह है कि हमसाया मुल्क भारत की नींदें हराम हैं। पहले इसके सामने सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन अब तीन इस्लामी ममालिक और इसमें और भी इस्लामी ममालिक शामिल होंगे। ये तो बड़े अफसोस की बात हो गई भारत के लिए। इजराइल भी खौफजदा है। वैसे इजराइल तो खौफजदा है ही, लेकिन अमेरिका की हालत भी बहुत नाजुक है। ईरान के खिलाफ जंग तवील हो गई है, जिससे तंग आकर अमरीकी तैयारा बरादर बहरी बेड़े पर तैनात कई एहलकारों ने खुदकुशी की कोशिश की है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तवील तैनाती के बाइस अमरीकी तैयारा बरादर बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन से मुतादिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की। एक एहलकार की अहलिया ने बताया है कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बाइस उनके शौहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका है। ऐसे में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा किया गया है। ये अदाद व शुमार वाज़े करते हैं कि अमरीकी फौजी ईरानी जंग से तंग आ चुके हैं और वो मजीद इस जंग में नहीं लड़ सकते। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे, आपको हर लम्हा अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में अफसोस सद अफसोस। इसके साथ ये किस्सा बताएं कि एक लड़की
एक थाना और एक पुलिस एहलकार, उस पर संगीन इल्जाम। लाहौर के गाजियाबाद थाने में 2 अगस्त को मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आता है। इल्जाम एक एएसआई पर लगता है। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मिल चुका है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ। असल तफ्तीश तो अभी शुरू हुई है। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस का कहना है कि हतमी फैसला डीएनए रिपोर्ट के बाद होगा, यानी अभी हकीकत आना बाकी है। दूसरी जानिब मुतासरा लड़की की ज़हनी हालत भी जांची जा रही है। उसके लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। 18 अगस्त को बोर्ड अपनी राय देगा, लेकिन कौम पूछ रही है, एक मुबैना ज़हनी तौर पर माजूर लड़की को थाने लाया ही क्यों गया? और यहां पुलिस खुद भी तस्लीम कर रही है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लड़की को थाने लाने में पुलिस के एसओपीज की खिलाफ वर्जी हुई है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे थाने लाया कौन है, किसके हुक्म पर लाया गया है, किस तरीकाकार के तहत लाया गया है, और अगर एसओपीज तोड़े गए हैं तो जिम्मेदारी किस पर लागू होती है? क्या सिर्फ एक पुलिस एहलकार को पकड़ लेना काफी होगा, या पूरे मामले की जिम्मेदारी भी तय होगी? क्योंकि पुलिस स्टेशन तहफ्फुज़ की जगह है, खौफ की या डर की नहीं। और अगर कमजोर शहरी, खास तौर पर एक ज़हनी तौर पर माजूर लड़की पुलिस की तहवील या निगरानी में हो, तो रियासत की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। और यही सवाल सिर्फ गाजियाबाद थाने तक महदूद नहीं है। थाना टाउनशिप लाहौर में भी नंद और भाभी की हलाकत का मामला भी सामने आ चुका है। मुतासरीन को इंसाफ पता नहीं कब और कहां मिलेगा। आए रोज इस तरह की जो खबरें हैं वो हम ब्रेक करते रहते हैं, और ना जाने इस रन डाउन में और कितनी खबरें ब्रेक कर रही है। लेकिन जाते जाते कल जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, लिहाजा गुजारिश है कि आज़ादी मनाएं, किसी को तकलीफ दिए बगैर। और ये आज़ादी जो है वो एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ मनानी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले रन डाउन में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।